Hi guys, I am Shreya. She's I am Vash. Vaishnavi. Okay, she's Vaishnavi. Welcome to podcast. So, hi Vaishnavi, what are we going to talk today? We are going to talk about a recent interview experience, and we would say that it is the first interview experience which we have given with DShaw, a company which is fintech, and finally I know it now after getting rejected in that company. So, let me first tell me the background. So, what happens is we are pursuing bachelor's in physical science with computer science from Miranda House, and we are having our on-campus recruitment right now, and we have given our first interview experience in DE Shaw. So that was yesterday only, and from our faces you can see that we both got rejected in final interview round. I So- don't think they can see it by our faces here. We are already acting as we are so much happy. No, we yeah, are we not happy. are. We are. Yeah, I would say. यार फ़र्क तो पड़ता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट देन यू स्टार्ट डीलिंग विद प्रेशर्स ना. ठीक है, अभी ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कंपनी इन योर लाइफ, अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, यू कैन डू बेटर, एंड मे बी दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, मे बी समथिंग एल्स इज टू बिकम. अब भाई साहब इंटरव्यू देने से पहले मैंने डीशा के बारे में सुना भी नहीं था, तो कौन है डीशा भाई? कुछ डजंट एग्जिस्ट, आया और गया. No, you shouldn't say that actually. नहीं यार, आया और गया. Okay, acha, it's okay. So, Out of my life. what we are going to do today is we are going to share our experiences, what mistakes we did that you shouldn't do in your interview experiences. So let's start with you. So you're gonna start with your mistakes first? Sorry? You gonna start with your mistakes first? Okay. Yeah. So what I feel the mistakes we did was we are not very confident enough to explain our projects and ideas. Firstly, I didn't mention lots of projects because the girl that selected That was got selected. that got selected. Okay, तू पहले ये कर ले, मेरी ग्रामर सही कर ले यहाँ पे. ऐसे करती है. Then we'll do podcast earlier. No, okay, you can go. Okay, so the girl that selected was our batchmate only. That was Sakshi. Congratulations to her. Congratulations, Sakshi. So I saw her resume and I realized that she had mentioned a lot of projects. Okay, so her whole interview was based on that projects only, and obviously if you have done that project so well, you will be able to explain them properly. What I did was I didn't mention any project. I mentioned my internship experiences, and my internship experiences was not related to softwares and hardware that they was keening for, that they were searching for in a candidate. So this is what I feel is one of the mistakes. And what I feel is this, that the point is right that she mentioned her projects. But what I did, I mentioned everything which I have done, and I have done my experiences about experiences in my internships, my education, my everything I mentioned in that resume. So what got that in that 20 minutes of my interview, I was not able to process what I've mentioned in my interview. Sorry, what I've mentioned in my resume. And this Like this only, she was overexcited all the time. like this only. I messed it up and ended up nowhere. No, it's okay. Also, what I feel the mistake was from my side is that this was not a proper technical round. This was kind of your personality, your resume round, kind of resume selection sort of thing. So this हम चाहते तो वी कैन प्रोसीड द इंटरव्यू इन द वे आई वांटेड, बट ऐसा हुआ कि वो रेज्यूमे से आपके क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसा करना होता है कि प्रोसेस कि वो पूरा इंटरव्यू आपके हिसाब से चले. अपने आप फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी बातें करो विच यू नो कि कहीं से एक सिंपल वर्ड भी यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. कुछ भी ऐसा मत बोलो. दिस इज़ वॉट शी डिड इन हर इंट्रोडक्शन इज़, इसने अपनी सारी टेक क्वालिटीज़ बता दी. आई नो C++, आई नो जावा, आई नो CPU शेड्यूलिंग एंड ऑल, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन दैट ओनली. अगर इफ़ शी वुडंट हैव टोल्ड दैट, Actually, those were something that I was not very much sure about. मैंने सब में प्रोजेक्ट किया, मैंने जावा भी पढ़ा है, मैंने C++, मैंने सब कुछ पढ़ा है. बट एक्चुअली उससे इंटरव्यू से पहले एक रिवीजन चाहिए रहता है, क्विक रिवीजन, कि तुम अगले दिन कॉन्फिडेंटली उसे बोल पाओ. एंड आई वॉज नॉट श्योर कि वो एक टेक राउंड था, तो मैंने उसके लिए बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर किया था. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन HR इंटरव्यू. सो मेरा सब मैसअप हो गया, और मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा मैंशन कर दिया जो चीज़ें आई वॉज नॉट 100% श्योर. I should have mentioned something else which I was 100% sure, like my projects which I have done, like my experiences in my internships.
I could have mentioned that. So what happened in my case is कि उन्होंने मेरे से पूछा introduce yourself. I started introducing myself and then last में कि interview goes according to what I want. तो मैंने बोला कि I am interested in hardware and software. So they asked me कि dude, hardware and software are very vast varieties. How can you say that you are interested in both? So मैंने बोला कि like software I am pursuing computer science from IIT Madras as well, from Miranda House as well. So I know basics about softwares and all, but we didn't have any hands-on experience on hardware things. So I told him कि मैं interested हूँ hardwares में, and since हम daily कुछ ना कुछ problems encounter करते हैं अपने laptop या PC में, right? तो फिर I started focusing on those things. तो अभी मेरा इंटरव्यू पूरा उधर शिफ्ट हो गया. उन्होंने मेरे से started asking me questions like कि for example आपके PC slow रन कर रही है. ऑब्वियसली दे वांटेड अ कैंडिडेट की जो इन सब में मतलब द रोल वॉज इट सेल्फ वॉज सिस्टम टेक एसोसिएट. दैट वॉज नॉट अ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न. वी डिडंट नीड टू मेंशन कि हमने अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस क्या किए हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या बनाया. दे डिडंट आस्क फॉर दैट. दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई हैव डन कि वो 20 मिनट ऑफ द इंटरव्यू जहाँ पे मेरे को अपने बाकी के स्किल्स, ऐसा नहीं मेरे पास वो सिस्टम टेक एसोसिएट वाले स्किल्स नहीं थे, वो भी प्रेजेंट थे, और मेरे बाकी स्किल्स जो थे मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया. मैंने अपना वेब डेवलपमेंट बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. एंड मैंने अपना सॉफ्टवेयर स्किल्स ज़्यादा बताने की कोशिश की, और हार्डवेयर तो मैंने मतलब बताया ही नहीं. इवन वन क्वेश्चन जो उन्होंने हार्डवेयर के बारे में पूछा, आई गॉट नर्वस एंड आई डिडंट आंसर इट वेरी नाइसली. आई न्यू इट बट आई डिडंट आंसर इट, आई डोंट नो व्हाई, एंड इट गॉट मेस्ड अप. And in my case, my all answers were like they didn't ask me very high-fi questions. They just asked me very simple. Basically, मेरा last interview था. मेरा फर्स्ट था. एंड शी गॉट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माय इंटरव्यू. Yeah, but मेरे को experiences को utilize करने का time ही नहीं मिला because Still thanks me. they didn't ask. थैंक मी फॉर इट यार. Okay, thank you. Whatever. So मेरे को वो टाइम ही नहीं मिला एक्सपीरियंसेस यूटिलाइज करने का. बट बिकॉज दे डिडंट आस्क्ड मी वैसे क्वेश्चंस, आई फील दैट दे वर लाइक ऑब्वियसली साक्षी इज़ वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग. हम उसके साथ रहते हैं. शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग वेरी नाइसली. सो आई थिंक शी डिजर्व्स, एक्चुअली शी डिजर्व्स. सो हमारे केस में, मेरे केस में स्पेशली क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि फॉर एग्जांपल यू इनकाउंटर अ प्रॉब्लम कि पीसी आपका बहुत स्लो रन कर रहा है, व्हाट आर द वेज टू सॉल्व इट, आप क्या क्या कर सकते हो. मैंने बोला एज अ फ्रेशर, एज अ न्यूली, हम कभी भी हम देखते हैं बाई फ़ोन मेरा स्लो हो रहा है, मैं क्या करती हूँ, हिस्ट्री क्लियर कर देती हूँ, या फिर आई वांट मतलब मैं वो क्लियर कर देती हूँ, जितने भी टैब्स खुले होते हैं वो सब क्लियर कर देती हूँ. दैट्स ऑल आई एक्सप्लेन देम. ऑल्सो फिर उन्होंने मेरे से पूछा सम अदर थिंग यू वांट टू ऐड अप. मैंने बोला, मैं आफ्टर थिंकिंग थोड़ा बहुत आई थॉट कि प्रोसेसर चेंज कर दो. मैंने बोला ठीक है, i3 प्रोसेसर है, ऑब्वियसली क्या आएगा बंदे के दिमाग में. सो दे आस्क्ड, या ऑब्वियसली अच्छी है ये कि प्रोसेसर चेंज होता है तो स्पीड का कुछ तो फ़र्क पड़ता ही ऑब्वियसली. तो पर उन्होंने बोला कि विदाउट चेंजिंग द प्रोसेसर्स एंड ऑल व्हाट आर द. मैंने बोला सॉरी सर, आई नो ओनली दीज, आई रिमेंबर ओनली दीज एट दिस पॉइंट. फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि लैपटॉप में कभी कभी बहुत आवाज़ें आने लगती हैं. सो कैन यू टेल मी कि वो किस चीज़ से होती हैं. बोला सर दीज आर बिकॉज ऑफ कूलिंग फैंस एंड ऑल. मैंने बोला ओके. सो माई इंटरव्यू आर वेरी चिल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन. देन फिर टेक राउंड में दे आस्क्ड मी, मैंने मेंशन किया था, मैंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, बहुत फ्लॉन्ट कुछ भी नहीं किया. C++, जावा, HTML, नो नथिंग एट ऑल. आई जस्ट टोल्ड देम कि आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन डेटा साइंस विद IIT Madras as well, and I have my course as DS in Elgo in Python because I was pretty confident in Python. So मैंने बोला Python. तो they asked me questions related to Python. सबसे पहले they asked differences between dictionary and tuple. Who don't know? कौन किसको नहीं पता होता है. So I told them. Then फिर then उसके बाद we are acting so chill ना कि हमारा तो हो ही गया है. I don't know मेरा क्यों नहीं हुआ है. At the end the result is that we but are a failure in this particular round. Yeah. And we are telling our mistakes ki why we failed, because we know it after sobbing for like 2 days. 2 days? Yeah, 2 days. After sobbing for like 2 days, like क्यों नहीं हुआ, कंपनी बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, at the end पता चला no there is something here. हाँ obviously जिसका हुआ obviously she deserves She more. deserves it. So it means it is a mistake from our side. Yeah, of and the course. mistake from my side was this. Yeah, whatever we are explaining And from right my side maybe it's कि I shouldn't have explained well, but यार
Explanation, first point. Okay, so you Yeah. can now write the points. Explanation should be very great, to the point. ऐसे नहीं भाई तुझसे पूछ रहा है CPU के components बताओ और तुम पहुंच गए CPU के processing को बताने में, which I did in my interview. The other thing was like गलती हमारी हुई कि resume बनाते टाइम तुमने भले ही भाई लाखों किया हो, तुमने कंटेंट में किया हो, ग्राफिक में किया हो, इधर उधर Make जितनी sure you are Yeah. मेकिंग रिज्यूमे टू द पॉइंट, जो उस पर्टिकुलर कंपनी की वो जॉब चाहिए। रोल है उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाओ. Since like You don't need to yeah. mention all your internship experiences. And you हमने एक इंटरव्यू दे के ये सारे एक्सपीरियंसेस हमने पता चल गए. ये हमने किसी ने नहीं बताया था. सब बस HR राउंड बताए जा रहे हैं. Honesty, integrity. They are not going to ask you about. They are going to judge it. Judge. Yeah, they are going to judge your integrity, honesty. They are not going to ask, okay, say me, tell me Vaishnavi that you are honest or not. No, No. man, they are going to judge it. They are going to No, check what, it. No, what they checked about it is like my experiences were quite fine, but at the time of interview now, if they ask you that which particular company you like, you don't know. At that particular moment, you will like say any name, and that is what I did. I just said any name. It was another company which told me that yeah, I am very problem solving of nature, but I mentioned any other company, and then they asked that what was there which you solved, which problem have you solved in that particular company, and I was speechless because that particular company has nothing to do with problem solving. Also, while preparing, I recently encountered कि when you are mostly generally asked this question कि what are your short term and long term goals. So yeah, So that's true. it wasn't asked to me, but generally it's asked. Okay. So sorry guys, we are थोड़ा अभी अब सेटअप भी दिखाएंगे अब तक कि हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं. no, we Yeah, can't. please, we can show it. We can't. We can show it. No, we can't. Just shut up, Ashmi. Okay. Okay. So what where was I? Your shortcomings and long term. Yeah, short term and long term goals. So see, you have to be honest, but you have to see कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत ढलना पड़ता है. सो इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स दैट इज़ नॉट मैचिंग विद कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल, प्लीज़ डू नॉट डेयर टू से दैट. Which I did. मेरे को लगता है ना मेरा इंटरव्यू ऑल टुगेदर बहुत ठीक ठाक गया था. मैंने लास्ट मोमेंट में क्या गलती कर दी कि मेरे को देखो हार्डवेयर में उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर्टिकुलरली नहीं था, और मैंने वहाँ पे अपनी ऑनेस्टी दिखा दी. मैंने बोल दिया कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई शुड हैव सेड देयर बिकॉज आई वॉन्टेड दैट पर्टिकुलर जॉब, एंड इतना भी नफरत नहीं था मुझे सो हार्डवेयर से. आई वॉज लाइक मैं पढ़ रही थी उसके बारे में, तो मैं ये कह सकती थी कि आई कैन ग्रो इन दिस फील्ड, आई कैन लर्न मोर अबाउट दिस फील्ड या समथिंग लाइक दिस आंसर्स. बट वॉट आई सेड, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर, आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड दिस साइड ऑफ फील्ड. सो आई थिंक भाई अगर मेरा सारा इंटरव्यू भी सही गया होगा तो उसे यही नहीं लगा होगा कि भाई ये तो जॉब इससे चाहिए ही नहीं, इसको तो हार्डवेयर करना ही नहीं है, तो ये क्यों आ रही है, इसमें रहने दे. And most importantly, be confident. Yeah. The interviewer should not feel you are overconfident or you are underconfident. You should be confident in overall in your interview. झूठ भी बोल रहे हो ना, confident से बोलो भाई. अगर बोल रहे हो तो अगर बोल रहे हो तो I recommend not to say, क्योंकि बिकॉज ना अगर आप पकड़ा जाएगा. स्टार्टिंग में आप झूठ बोल रहे हो, देन अगर तो उसने पकड़ लिया कि भाई इस कैन आई गिव योर एग्जांपल मेरा एग्जाम्पल कोई झूठ नहीं था. प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मेरा बॉस, मतलब वो जो बॉस प्रॉब्लम सॉल्वर था वो एक्चुअली मैंने कहा है कि मैंने कहीं और कंपनी का नाम, आई डिडंट मेंशन क्लियरली. एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज दिस दैट आई सेड दैट वन ऑफ माय बॉस, अरे ये मच्छर, वन ऑफ माय बॉस has said sorry me, guys, we have quite lot of mosquitoes PG problems. in her room. PG problems, yeah. In So, her room, they are quite her roommates, To the point. so that she didn't miss her home. Acha, now let me explain. I didn't tell a lie, but what I did, whatever I said, I was not sure about. मैंने बोल दिया कि मेरे एक बॉस ने मेरे को बोला कि कॉम्प्लीमेंट किया कि आई एम अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड दैट पर्टिकुलर बॉस वाज माई इल्यूमिना काउंसिल वेबसाइट पर्सन. मतलब जो मैंने वेबसाइट बनाई थी इल्यूमिना काउंसिल में, उसका वो हेड था, उसने मेरी तारीफ की थी बिकॉज ही वॉज गिविंग मी प्रॉब्लम्स लाइक फॉर्म बना दो, ये बना दो, बना दो, एंड वो बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक थे. उस तरह के प्लगइन्स तुम्हें नहीं मिल रहे थे, एंड आई वॉज सर्चिंग इट एंड आई वॉज सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब मेरे दिमाग में मैंने वो सोच के बोल दिया कि यार ठीक है, ये चीज़ मेरे को बोली गई. एंड व्हेन ही आस्क्ड दैट व्हिच पर्टिकुलर बॉस टोल्ड यू, आई टुक अनदर कंपनीज नेम
वेयर आई वाज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। ड्यू टू नर्वसनेस एट ड्यू टू नर्वस, भाई उस टाइम मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा लगा ना कि एल्यूमिना काउंसिल थोड़ी सी वैसी कंपनी, मतलब थोड़ा सा Yeah. मतलब सोसाइटी Low. थी, नॉन नहीं सोसाइटी थी, लो नहीं सॉरी सोसाइटी थी। Oh God. Whereas Upgrad was a company which I was very much fond. Oh my God, मेरे CV पे Upgrad है, बहुत मजा आएगा इससे, मैंने Upgrad बोल दिया। और वहाँ पे मेरा रोल क्या था, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का। एंड लिटरली वहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं थी, वहाँ पे सिंपली मेरी टेक स्किल्स थी, मेरी एक्सप्लेनेटरी स्किल्स थी, जो कि फेल होगी ना, लेकिन वहाँ पे थी। ठीक है, तो these are the thing which were there. Guys, we are being brutally honest here. So Yeah. please like, वहाँ पे भी ऐसी ऑनेस्ट थे, इसीलिए अब चले गए यार। subscribe. वहाँ पे भी Can we say? अभी एंड नहीं हुआ, मेरे को भी एक लास्ट चीज़ ये बोली है प्लीज एंड कि करो यार, 15 नहीं, मिनट please, कोई नहीं please, देखता है। नहीं यार, देखने दे, मेरे को नहीं पता देखना है नहीं देखना उनकी मर्जी, बट एक चीज़ यार, रेज्यूमे में जो भी तुम बताइए, ये टाइम है फ्लॉन्ट करने का। मेरे को सबने एडवाइस दिया था कि फ्लॉन्ट मत करना। इस चक्कर में मैंने अपने इंट्रोडक्शन से लेके यार तो बोल, मेरा गला खराब है। गाइस, सिंपल सॉर्टेड बात ये है कि मैं आपको सब क्रिस्प में एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेज्यूमे बनाओ, रेज्यूमे ऐसे बनाओ कि प्रोफाइल बेस्ड बनाओ। लाइक आपको अगर सिस्टम टेक एसोसिएट का बनाना है तो सी कि उनको क्या चाहिए एंड उससे आप कैसे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, रेज्यूमे ऐसे बनाओ। रेज्यूमे में कोई भी चीज़ डोंट मेंशन जो आपको अच्छे से नहीं आती है, जिसमें यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर वो भी एक पॉइंट पे आ गया ना, और एक पॉइंट पे अगर उसने पकड़ लिया तो फिर योर इंटरव्यू कैन ख़राब हो सकता और है। अगर आपकी किस्मत मेरी जैसे है कि तुम्हारा वही पॉइंट पकड़ के चला वो, So, इट इज़ मोर। मेक श्योर यू गिव प्रॉपर टाइम टू योर रिज्यूमे। आप अच्छे से पढ़ो उसे, अच्छे से गो थ्रू योर रिज्यूमे। सेकेंड थिंग इज़ कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू एक्सप्लेन। बी कॉन्फिडेंट अबाउट अब क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हो बंदे को, क्या प्रोजेक्ट्स आपने जो भी बनाए हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी वो पूछ रहा है, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन देम। ठीक है। थर्ड रेज्यूमे में भाई जो भी मेंशन, मतलब जो मेंशन Yeah, किया हुआ है explain ऑलरेडी, वो कम चीज़ें मेंशन करो। और अगर मेंशन किया है सारी चीज़ें, अगर मेंशन किया है तो तुम उसे फ्लॉन्ट करो। 20 मिनट का टाइम मिलता है इंटरव्यू में, 20 मिनट में वो नहीं कर सकते तुम्हारा पूरा रेज्यूमे कवर अपने क्वेश्चन से। तुम्हें उन्हें बिना क्वेश्चन के आंसर कर देना है। ऑलरेडी आई वुड सजेस्ट इट। अगर मेरा इंट्रोडक्शन था, मुझे अपने इंट्रोडक्शन में ही सारी वो बेसिक पॉइंट हाईलाइट्स कर देनी चाहिए थी। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपना इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि आई वॉज गेटिंग सजेशन दैट आई शुड नॉट फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ। बट दैट इज़ द टाइम वेयर यू फ्लॉन्ट, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू शो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे वेरी नाइसली टू देम। देन ओनली तुम्हारा अगला 20 मिनट अच्छा जाएगा, वरना नहीं जाने वाला। हाँ, मेक श्योर कि जो भी इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो उसका हर एक वर्ड यू नो वेरी वेल, क्योंकि रिज्यूमे, क्योंकि ये राउंड वैसे ही चलता है, आप जो बोलते हैं उससे वो क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं। या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर I साइड। think we should end it here because I am not feeling well. हाँ, you never feel well. Okay guys, thank you for इसमें देखिए ना तो कितनी सिंपैथी हील लड़की है यार। watching us. This is our first video. हमें माफ़ करना जो भी हमने बोला होगा and all. But this is what we wanted to share with you guys. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ये ऑफिशियली फर्स्ट यूट्यूबर वाला वीडियो है ना, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वो वाइब ला रहे हैं। No, thank you. थैंक